Thank you to giving us this opportunity to represent a group presentation. Myself, Rimpa Dev. I am a student from BMLT second year. My ID is 22IUT0510011. Today, me and my group mates are represent a group presentation on the topic of SGPT and SGOT. Now, my group mates will introduce themselves one by one. My name is Sabir Ahmed. I am BMLT second year. My ID 22IUT051027. Myself 0027. Myself Jitbomit from BMLT second year. Myself Anthar Bhattari from BMLT second year. ID number 22IUT0510088. Myself Lakshman Devarma from BMLT second year. SGOT and AST. SGOT is also known as AST. SGOT stands for a serum glutamic oxaloacetic transaminase and AST stands for aspartate amino transferase. So SGOT is also known as AST. SGOT is an enzyme which largely found in the heart muscles and liver, and small amount found in the skeletal muscles, heart and kidney. It is also found in the variety of tissues including heart muscles, liver, kidneys and brain. It can release the blood when any of these tissues can be damaged. SGOT measures the level of enzyme AST, which assess in the liver health. It is a part of a blood test to perform the liver profile. When any liver cells can be damaged, SGOT leaks to the bloodstream and increase the level of the blood. Increase the level of the blood, and it can causes kidney damage, cancer, etc. It is the test to use diagnose for the liver diseases, and it is used as well as for the screening for the liver damages. Whenever SGOT is high, when any cases SGOT is high, it will indication of the liver diseases. So we all know that SGOT is an enzyme that produce of the liver to help body in metabolism. Okay, now I will hand over to the Sabbir. He will discuss the another parts. Thank you, Rimpa. So my part is increase of SGOT. फर्स्ट वन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन. मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, जो हार्ट है उसको ऑक्सीजन या ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, तो हार्ट का जो हार्ट लेवल इंक्रीज होता है, तब लिवर डिजीज होता है. लिवर नेक्रोसिस में क्या होता है, लिवर का जो सेल है वो डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है, तब एसजीओटी का लेवल इंक्रीज हो जाता है. सेल ऑफ लिवर, कैंसर ऑफ लिवर में क्या होता है, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा को भी एसजीओटी का लेवल इंक्रीज होता है. एल्कोहलिज्म में क्या होता है, लिवर का पार्ट को डैमेज होता है और लिवर का सेल भी डैमेज होता है, तो उसकी वजह से एल्कोहलिज्म में एसजीओटी का लेवल इंक्रीज होता है और एसजीओटी का लेवल भी इंक्रीज होता है. सेवरल बर्न में क्या होता है, जब कोई जल जाता है आग से या केमिकल से, तब उसके बॉडी में भी एसजीओटी का लेवल इंक्रीज होता है. हीट स्ट्रोक में क्या होता है, मोस्टली ये गर्मी के सीजन में होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर हो जाता है, तब एसजीओटी का लेवल इंक्रीज होता है. नॉर्मल रेंज ऑफ एसजीओटी, नॉर्मल रेंज मेल में होता है 7 to 45 डिग्री 45 पर यूनिट पर लीटर. वुमेन में होता है 7 to 31 यूनिट पर लीटर, और न्यूबॉर्न में हुआ होता है 15 to 60 यूनिट पर लीटर. Now discussing about cause of decrease SGOT, diabetic ketoacidosis, जिसमें डायबिटीज अनकंट्रोल होगा तो कीटोनोसिस ब्लड में आ जाता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण जो ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है और इस कारण SGOT लेवल इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट है हेमोडायलिसिस.
removing waste from blood, maintain blood pressure, materials like calcium, potassium, sodium in patients. ये एक प्रोसीड्यूर है, मोस्टली उन लोगों पर यूज़ किया जाता है जिसका किडनी कमज़ोर होता है, और हीमोडायलिसिस इसलिए यूज़ कर देते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से रिमूव कर सके और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सके. Now I will discuss about SGPT. SGPT also called ALT. SGPT stands for serum glutamic pyruvic transaminase and ALT stands for alanine aminotransferase. SGPT बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिवर के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है, और SGPT और ALT का जो एंजाइम है वो लिवर की सेल से प्रोड्यूस होता है, तो इसकी थोड़ी सी अमाउंट मिलते हैं कार्डियक रेनल टिश्यूज में. तो SGPT और ALT का एक फंक्शन होती है, तो ये फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, एंड ALT और SGPT का लेवल जब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होता है ब्लड में, तो डिस्ट्रक्शन होता है लिवर को एंड लिवर को डैमेज करता है. थैंक यू. नाउ आई विल हैंड ओवर टू लेक्स. मैं बात करूंगा वो है कॉज ऑफ इंक्रीज एसिडिटी एंड ALT. पहले हेपेटाइटिस A, B एंड C. बात करते हैं B एंड C के बारे में. हेपेटाइटिस B और C में वो लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से वहाँ पर भी SGPT का जो लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलता है. उसके बाद अल्कोहलिज्म में भी सही में वहाँ पर भी SGPT का लेवल इंक्रीज होता है, और ड्रग टॉक्सिसिटी में भी सही है, वहाँ पर भी SGPT और ALT का लेवल इंक्रीज होता है, और वहाँ पर भी ऐसे ही वो हेपेटाइटिस B एंड अल्कोहलिज्म में जो होता है वो ऐसे ही होता है. वहाँ पर भी अभी आते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में. हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में बेसिकली लिवर जो है लिवर पे कैंसर होता है, और कैंसर की वजह से लिवर का जो सेल्स है वो डैमेज हो जाता है, और वहाँ पर भी SGPT और ALT का लेवल इंक्रीज होता है. गल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, वहाँ पर जो बाइल डक्ट है वो ब्लॉक हो जाता है, और बाइल जो है लिवर से मतलब फ्लो नहीं कर पाता, और इसकी वजह से वहाँ पर भी SGPT और ALT का लेवल इंक्रीज होता है. इसके बाद आता है स्केलेटल मसल डिस्ट्रक्शन, वहाँ पर भी सेम होता है, और वहाँ पर भी SGPT और ALT का लेवल इंक्रीज होता है. हम थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं जो SGPT और ALT का नॉर्मल रेट है, वहाँ पर मेन का जो है 45 यूनिट पर लीटर होता है, और वुमेन का 35 यूनिट पर लीटर है. Thank you. This is the overview of our topic SGOT and SGPT. उम्मीद करते हैं कि सबको ये अच्छा लगेगा और सबको समझ में आएगा हम लोगों ने क्या समझाने का कोशिश किया है. थैंक यू.